Children, in the last class we had seen in the principles and processes, we had seen recombinant DNA technology, how the recombinant DNA is being formed, and what are the various ways, means how it is being used. Like I have combined both the chapters, principles and processes as well as applications in biology, and hence we were going like that, I had shown you how the insulin is being prepared and how the ADA deficiency gene, how it is being treated if a person is suffering from ADA deficiency, SCID, severe combined immunodeficiency. Then how HB vaccine is being prepared by the use of biotechnology. Now, biotechnology again, if we start it again, like it is comprising of, means it is come into our daily use so much that we are preparing it in such a large scale by using technology. Biotechnology means using living organisms, and technologically how you are changing and preparing huge quantities of organisms and enzymes, everything. So, according to European Federation of Biotechnology, according to European Federation of Biotechnology, that is EFB, what did they say? According to them, means how we are maintaining the natural organisms, how according to the European Federation of Biotechnology, how the natural organisms, how they are modified and they are used, and their products are being used for the service of the mankind, means how it is being used. So basically biotechnology, basically it comprises only two parts, means two ways it will be done, biotechnology. One is genetic engineering, second maintenance of sterile conditions. Genetic engineering means we are manipulating the genes, means genes are being manipulated, engineered, and the desirable gene is being introduced into the host or the vector, which we had discussed in the last chapter also, how it is being done. So it is genetically engineered, two steps it will take place, biotechnology. Second, what we have inculcated means the genes, the recombinant gene, जो नया gene हमने बनाया है उसको हम sterile conditions में ही maintain करना है. We have to maintain aseptic and sterile conditions because what we need, only that gene or that enzyme or that protein needs to be produced in larger quantities. For that reason we have to maintain the sterile conditions. If we are keeping these 2 points in mind, that means our work is going very smoothly in biotechnology. Now, how does it take place? Okay. Now, how does it take place? It will take place like if we have to transfer, means gene transfer has to take place. That is gene of our interest. Then gene cloning. Gene cloning has to be done. Okay. Now, third is recombinants. Basically these three things we have to see. First, we have to isolate gene of interest, means a gene of interest means it will be another DNA, that means we need a piece of DNA. Okay. So if we need a piece of DNA, how do we get that DNA? First of all that is we need extraction of DNA. Extraction of DNA. We know that there are certain enzymes. Those enzymes are known as restriction enzymes, or can we call this as nucleases? Restriction enzyme or nucleases. Restriction means थोड़ा restrictions है, fully नहीं काट सकते आप. Nucleases means they will cleave. They will cut. Nucleases, these are enzymes which will cut. Restriction enzymes मतलब they will cut at a particular point. उनको पता है कहाँ कितना बेस पेयर्स तक कट करना है. तो that is the reason for, that is the work of
restriction enzymes, it will cut at a particular place. 6 बेस पेयर चाहिए, 8 बेस पेयर चाहिए, कितना चाहिए, हर restriction enzymes का अपना अपना recognition sequence है. That is recognition sequence. See, everything is linked. Recognition sequence. अगर हमें कुछ बेस पेयर्स काटना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, तो एक सीक्वेंस में वो लोग काटते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो वो दोज आर द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस. व्हाट इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस? बेसिकली in DNA there are certain points in the entire length of DNA. There are so many places where there are palindromic sequences. There are palindromic sequences. What is palindromic sequences? Like the word Malayalam. If you see the word Malayalam, from left to right is also it is Malayalam, from right to left also it is Malayalam. Means you can, from either sides it spells the same. Similarly, such kinds of sequences are known as palindromic sequences which occur in the DNA. Suppose it is this way, GAATC, okay. So it will be C T T A G, okay. So basically it is complementary and it is palindromic. You read this side also the same, this side also if you read it will be the same. Those are known as the palindromic sequences. They will occur exactly, they will occur at the same point, okay. So these palindromic sequences, you see, if you read means it is the same thing only. Cytosine with guanine, thymine, adenine, thymine, adenine, thymine, adenine, thymine, guanine, cytosine, the same. So these are the palindromic sequences. They will occur everywhere in the DNA. They will, many places in the DNA palindromic sequences will occur. We have to cut these palindromic sequences. These palindromic sequences are being cut. So if you see, what is happening is, to cut these palindromic sequences we need restriction enzymes. Restriction enzymes, basically there are two types, or the nucleases, exonucleases and endonucleases. Exonucleases means they will cut sequences outside, means here outside, exo, outside, and endo means within. They will cut from the DNA. If it's a strand of DNA, it will cut within the sequence, it will count. Exonucleases means the sequence has ended, afterwards they will cut. So here we will cut. Suppose we need this palindromic sequences, when the nucleases cut it, they will cut it and they will not cut from the center, means this center should not be harmed. Here also they will leave and here also some sequences will be left. These sequences, they are nothing, they are not palindromic, they are known as sticky ends. Why they are known as sticky ends? They will just like that because the complementary base sequences will not be there. Means suppose ये जो जगह है, दो इस बेस पेयर्स के बीच का जगह है, ये स्टिकी एंड्स है, दो बेस पेयर्स के बीच का जगह थोड़ा जो रहता है वो बच जाता है, छोड़ देता है उसको. तो अब जब लिगेशन होगा, जब उसको ज्वाइन करना है, मतलब हमारा प्लास्मिड में, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, प्लास्मिड्स आर क्लोनिंग वेक्टर. For that we had seen plasmids are cloning vector. तो ये प्लास्मिड में आपको ये जीन सीक्वेंस डालना है. ये है प्लास्मिड, डबल सर्कुलर, ओके. तो यही यहाँ कट होगा, ये यहाँ जब कट होगा तो ये सीक्वेंस, ये कट वाला जगह, इसको कट करके ये सीक्वेंस यहाँ डालना है, ये सीक्वेंस. तो जब ये सीक्वेंस को इधर डालना है, पहला तो कटिंग हुआ. कटिंग किसने किया? न्यूक्लियस ने कर दिया, एंडोन्यूक्लियस ने कट कर दिया. देयर आर स्टिकी एंड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा जहां पर उसको वो करना है, स्टिक करना है. वहां इनको स्टिक इधर कौन करेगा? अनदर एंजाइम्स कम इनटू बीइंग, दैट इज नोन एज लिगेसेस. लिगेसेस क्या है? दे आर नोन एज फेविकॉल. दे विल जॉइन द कट एंड्स. दे आर आल्सो एंजाइम्स बट दे विल जॉइन. तो ये लिगेसेस क्या करेगा? इसको ये प्लास्मिड में ज्वाइन कर देगा. अब ये जो प्लास्मिड में जो ज्वाइन हुआ है, ये सीक्वेंस ज्वाइन हुआ है ये प्लास्मिड में, जैसा GAATC वाला, ये वाला एक सेगमेंट ऑफ DNA जो है ये प्लास्मिड में ज्वाइन किया है. अब ये जो प्लास्मिड है, अब इसको क्या बोला जाएगा? नाउ इट इज अ रिकॉम्बिनेंट DNA.
क्यों रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जाएगा इसको? क्योंकि ये रिकम्बाइन हुआ है, मतलब वी हैड रिकम्बाइंड इट इन द प्लास्मिड। तो ये सीक्वेंस जो है, दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस को फिर एक होस्ट में डाला जाएगा। मोस्टली वी यूज्ड बैक्टीरियम, बैक्टीरिया यूज करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया। ये कैसा मतलब मिला था ये ई कोलाई R1, इसको नेमिंग कैसे करते हैं? ई कोलाई 1, एस्चेरिशिया पहला वर्ड, ई कोलाई सेकेंड स्पीशीज नेम, देन R द नेम ऑफ द स्ट्रेन एंड 1 दैट इज द रोमन न्यूमरल, कब इनको निकाला गया है वो उससे। तो ऐसा इसको करके नेमिंग किया जाएगा। और कोई भी एक फॉरेन डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डालना है बोलने से, दिस इज द होस्ट, ओके, इसको अगर डालना है, प्लास्मिड्स आर बैक्टीरिया का ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, बैक्टीरिया का ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लास्मिड्स होता है। दिस प्लास्मिड, ये बैक्टीरियल डीएनए और जो उसका एक्स्ट्रा है दैट इज द प्लास्मिड। तो अब ये वाला रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड जो है इसको यहां अंदर करना है। तो अभी इसको अंदर कैसे करेंगे? यस, हमने क्या देखा था? एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है। हमने एक्सट्रैक्ट कैसे किया? हमने एक्सट्रैक्ट अभी तक किया नहीं है, उसको कैसे करना चाहिए एक्सट्रैक्ट डीएनए को? डीएनए तो कहीं भी मिलता है, डीएनए हमारे बाल में डीएनए है, फ्रूट्स में डीएनए है, हर जगह डीएनए, तो उसको एक्सट्रैक्ट किया कैसे किया जाए? ऐसा तो नहीं है कि डीएनए ही सिर्फ रहता है। जैसे अगर हमारा हेयर है, एक स्ट्रैंड भी लिया जाए तो सिर्फ डीएनए तो नहीं है हेयर में, देयर आर प्रोटीन्स ऑल्सो। तो बेसिकली क्या है, वेरियस एंजाइम्स आर बीइंग यूज्ड, जैसा आरएनएएसेस, प्रोटीएसेस, डीएनएएसेस, दीज आर द एंजाइम। तो आरएनएएसेस डाल के, सपोज आपने एक हेयर स्ट्रैंड लिया या एक लीफ का आपने कुछ लिया, लीफ लिया है, तो उसका पहले आपने आरएनएएसेस डालना है। आरएनएएसेस मीन्स इट विल एक्सट्रैक्ट द आरएनए फ्रॉम दैट, आरएनए हट गया। नेक्स्ट आपने प्रोटीएसेस डाला, प्रोटीएसेस हट गया। तीसरा आपने क्या डाला? बचा क्या? डीएनए, डीएनए ही बचा है, तो आपने डीएनएएसेस डालना है। जैसे डीएनएएसेस डाला तो आपका डीएनए आपको मिल गया। अब डीएनए कैसे मिलेगा? डीएनए ऐसे ही रहेगा, तो उस समय क्या है, आपको चिल्ड एथेनॉल, यू प्लेस चिल्ड एथेनॉल, तो वो एकदम जैसे आप च्युइंगम च्यू करके आपको मिलता है ना एक, वैसे आपको डीएनए मिल जाएगा। व्हेन यू पुट चिल्ड अल्कोहल आपको डीएनए मिल जाएगा। लेकिन आपको तो उसको सेपरेट करना है, डीएनए को सेपरेट करना है, तभी ना आप ये डीएनए को इसमें प्लास्मिड में डाल पाएंगे। तो हाउ यू विल सेपरेट द डीएनए? तो ये तो आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया, दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, बाय हाउ यू विल एक्सट्रैक्ट। नाउ हाउ विल यू सेपरेट द डीएनए स्ट्रैंड्स व्हिच हैड टू बी इंसर्टेड इनसाइड द प्लास्मिड? आप सेपरेशन ऑफ डीएनए कैसे करोगे? तो उसके लिए यूज किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके लिए यूज किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने क्या करना है, एक ऐसे स्लैब वो बना हुआ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, दीज आर वेल्स, दीज आर वेल्स। ये पूरा एगरोस जेल है, ये जो पूरा स्लैब है दिस इज ऑफ एगरोस जेल, agarose gel. So and it is connected with the terminals, okay, these will be electrically connected with the terminals. So in these wells we put what we had separated the DNA, we will put in this wells we will put the DNA, okay, and this is the agarose gel. So if electricity is being passed, we know that DNA is negatively charged. तो DNA इज नेगेटिवली चार्ज, तो DNA क्या करेगा, वो मूव करेगा यहाँ से, ओके, इट विल मूव टुवर्ड्स द एनोड। जब वो मूव करेगा तो क्या होगा, सेपरेट कर रहा है वो, तो छोटे छोटे जो पार्ट ये है बैंड्स है वो ऊपर ऊपर जाते रहेंगे, और जो बड़े बड़े बैंड्स है, हैवी बैंड्स है, दे विल सेटल टुवर्ड्स द बॉटम। ऐसे करके ये सेपरेट हो जाएगा एगरोस जेल में, इट विल बी सेपरेटेड व्हेन वी प्लेस इलेक्ट्रिक करंट। एगरोस जेल में ये सेपरेट हो गया है, लेकिन ये तो एगरोस जेल में सेपरेट हुआ है। तो अब आप क्या करें, एगरोस जेल बोलने से आप उसको जैसे जेली जैसे खाते हैं ना, जेल बिल्कुल वैसे ही है, एगरोस जेल बिल्कुल वो जेली जैसे ही रहता है। तो उस जेली के ऊपर आप सोचिए डीएनए का पतला पतला स्ट्रैंड सेपरेट हुआ है, लेकिन हम डीएनए को नॉर्मल विजिबल लाइट में नहीं देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है अब, तो व्हाट वी विल डू दैट, वी विल टेक दिस एगरोस जेल, ये स्लैब्स,
उसमें से अपने को जो डीएनए चाहिए, सपोज ये चाहिए या ये चाहिए, ये चाहिए, जो भी चाहिए, इसको हम काट लेंगे। ओके, वी विल सेपरेट, वी विल टेक आउट दैट फ्रॉम दैट स्लैब दैट डीएनए विच वी नीड, दैट विल बी सेपरेटेड। उसके बाद इसमें इसको डाला जाएगा इथिडियम ब्रोमाइड में, इथिडियम ब्रोमाइड, या पूरा का पूरा उसको भी डाल सकते हैं, स्लैब को भी इथिडियम ब्रोमाइड में डाल सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इथिडियम ब्रोमाइड डालने से क्या होता है, एक येलो कलर दिखाता है, ऑरेंज, फ्लोरेसेंट ऑरेंज कलर दिखता है। वो किस में दिखता है, व्हेन वी प्लेस इट अंडर यूवी रेज, जब हम लोग यूवी रेज में प्लेस करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड में डालकर, तब वो बैंड्स आपको एकदम क्लियरली दिखाई देगा। ओके, अंडर यूवी लाइट। तो वी नो कि अच्छा ये जो डीएनए का सीक्वेंस है, दिस इज द सीक्वेंस व्हाट वी वांट, तो वो डीएनए सीक्वेंस हमें मिल गया। अब वो डीएनए सीक्वेंस हमने इसको प्लास्मिड में डाल दिया। अब ये प्लास्मिड को हमें बैक्टीरिया के अंदर डालना है। अब हम बैक्टीरिया के अंदर ये प्लास्मिड कैसे डालेंगे, हाउ वी विल पुट इट इनसाइड द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का भी बैक्टीरियल वॉल होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, देयर आर वेरियस मेथड। एक तो है कैल्शियम Ca++ डाइवैलेंट, उससे हम क्या करेंगे, इसको वॉल के भीतर भेज सकते हैं, आइदर दिस। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट देना चाहिए, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट ट्रीटमेंट देना चाहिए बैक्टीरियल सेल वॉल को। हीट ट्रीटमेंट देने से क्या है, वो थोड़ा वॉल्स थोड़ा खुलेगा। जैसी वॉल्स खुलेगा तो वी प्लेस दिस प्लास्मिड इनसाइड द बैक्टीरिया। वो ये प्लास्मिड को क्या हम करेंगे, ये बैक्टीरिया के अंदर हम लोग डाल देंगे। जैसे हम लोग बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे, तुरंत वी हैव टू प्लेस इट इन द अंडर द बैग ऑफ आइस, बैग ऑफ आइस के ऊपर डाल देने का। जैसे बैग ऑफ आइस में डालेंगे तो वो जो वॉल के अंदर हमने डाला है प्लास्मिड, वो फट से वो वॉल बंद हो जाएगा। तो तुरंत हीट देना है या शॉक देना है, शॉक फिर पोर्स के थ्रू चला जाएगा प्लास्मिड, एंड देन उसको बैग ऑफ आइस में रख देना है, तो दैट विल क्लोज, मतलब पक्का हो गया है कि येस इट इज इनसाइड, देन इट कैन गो फॉर इट्स रेप्लिकेशन। और तीसरा मेथड क्या है उसके अंदर डालने का, तीसरा मेथड क्या है, बायोलिस्टिक्स। इट इज नोन एज बायोलिस्टिक्स और जीन गन। बायोलिस्टिक्स और जीन गन में क्या है कि ये जो डीएनए पार्टिकल है दैट इज कोटेड विद गोल्ड और टंगस्टन, उससे कोट करके उसको एकदम जैसा गन हम लोग चलाते हैं ना, बिल्कुल गन का तरह ठक ऐसे करके मार के इसके अंदर भेजना है। ये कोटेड विद टंगस्टन है, इसके अंदर बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर डाल देना है, बायोलिस्टिक जीन्स कर। और चौथा क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। चौथा इज माइक्रो इंजेक्शन, मतलब हम अपना जो डिजायर्ड डीएनए है विद दैट प्लास्मिड क्लोनिंग वेक्टर, उसको हम लोग इंजेक्ट करेंगे विद इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर ही डाल देंगे। कितना उसमें ऑर्गेनिजम्स में यूज किया गया है उसके अंदर ही डाल देंगे। ऐसे ये इसके अंदर आ चुका है। ओके, हमने क्या क्या किया, फर्स्ट हमने डीएनए को सेपरेट किया बाय सेपरेटिंग फ्रॉम प्रोटीएसेस, फ्रॉम आरएनएसेस, देन डीएनएसेस, उसको चिल्ड एथेनॉल डाला, डीएनए हमें मिल गया है। उसके बाद डीएनए को हमने क्या किया, डीएनए के बैंड्स हमने सेपरेट किए विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमने इथिडियम ब्रोमाइड में डालकर उसको अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर देखा है अंडर में कि हाँ यही अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद हमने उसको इनकलकेट किया है इसके अंदर। इसके अंदर हम कैसे डालते हैं, सी एज आई सेड देयर आर वेरियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिनका अपना रिकग्निशन सीक्वेंस होता है। देन एज आई टोल्ड यू, वैसे उसको कट कैसे करते हैं, न्यूक्लियसिस से कट कर सकते हैं, दे आर नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, एंडोन्यूक्लियसिस, एक्सोन्यूक्लियसिस, फिर लिगेसेस उसको सील कर देते हैं एंड इट इज बीइंग प्लेस्ड इनसाइड द बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल के अंदर चले जाता है। तो बैक्टीरिया जब जब अपना डीएनए मल्टीप्लाई करेगा तो वो प्लास्मिड जो है, प्लास्मिड इज ऑल्सो मल्टीप्लाइंग द डीएनए ऑफ आर इंटरेस्ट। तो डीएनए कहाँ एक्चुअली डालना चाहिए ताकि वो इनकलकेट हो बैक्टीरिया में। तो बेसिकली क्या रीजंस होना चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर में ऐसा क्या होना चाहिए, क्योंकि हर जगह तो डीएनए नहीं रेप्लिकेट होगा ना, डीएनए को रेप्लिकेट करने का एक जगह होता है, तो दैट इज नोन एज ओराई साइट। ओराई साइट दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जो हम डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए हैं वो ओराई साइट में होना चाहिए वो डीएनए को, क्योंकि वहीं से वो रेप्लिकेशन शुरू करेगा। बिकॉज इट हैज टू बी इनकलकेटेड, क्योंकि अगर हम लोग कुछ बनाना चाहते हैं तो प्रोजेनी कैसे बनेगा, क्लोन कैसे बनेगा, जब वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट में रहेगा तब ना वो रेप्लिकेट करेगा बहुत बार। तो डीएनए जब जब अपना रेप्लिकेट जो होस्ट डीएनए जो है जब जब अपना रेप्लिकेट करेगा, वैसे ही अपना जो वेक्टर डीएनए है तब वो भी रेप्लिकेट करेगा वाया द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
तो उसके लिए क्या है, क्या क्या खूबी होना चाहिए, कि व्हाट आर द वेरियस थिंग्स और वेरियस फीचर्स ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर्स, वो क्या होना चाहिए. लाइक वी नो देयर आर नियरली 900 restriction enzymes, 900 restriction enzymes which have been isolated from 230 bacterial strains. So if we see what are the requirements for a cloning vector, suppose I have seen this, we have taken this cloning vector, एक क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. ओके, क्लोनिंग वेक्टर में आप देखो यहाँ पर कितना क्लोनिंग साइट्स है, 1 2 3 4 5, ये सब साइट्स है रिकग्निशन एंजाइम्स का साइट है. ये सारे जो रिकग्निशन एंजाइम्स है, ये सारे साइट्स में ये लोग रिकग्नाइज करते हैं ये बेस पेयर्स को. तो कितना सारा रिकग्निशन साइट्स है इनसाइड दिस क्लोनिंग वेक्टर. ओके, लेकिन एक्चुअली ये है बहुत सारा साइट्स है और कर भी सकते हैं. जैसे आपके बुक में दिया है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस का एक साइट दिया है पीबीआर में, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन्स दिया है एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन दिया है इन पीबीआर 322. ओके, इसमें दिया था प्लाज्मिड में, उसमें 2 साइट दिया था. इसमें आप देखो यहाँ पर अगर जितना मल्टीपल साइट रहेगा अगर क्लोनिंग वेक्टर में, उतना टीडियस हो जाएगा, उतना प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, क्योंकि 10 बार प्लेटिंग करना होगा, हर बार आपको प्लेट्स चेंज करना होगा for the transformant, to separate the transformants from the non-transformants. So what is transformants? Transformants मतलब जैसा कि वर्ड ही है, ट्रांसफॉर्म हो जाना, मतलब कि ये कैरी कर रहा है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो दैट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड और उसको क्लोन किया जा रहा है, तो उसको ही सेपरेट करना है ट्रांसफॉर्मेंट्स. और जो बाकी जो साइट्स रहेगा, दोज आर द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट साइट्स, जो बाकी प्लाज्मिड जो कैरी करेगा वो अपने को चाहिए भी नहीं है, तो उसको कैसे सेपरेट किया है. हम लोग को यही साइट चाहिए जहां पर ओराई साइट है, ये देखिए यहाँ ओराई साइट, यहाँ पर ही हमें जो अपना डिजायर्ड डीएनए जो है वो हम लोग डालना है. तो हम लोग यहीं से रेप्लिकेशन शुरू होएगा, ओराई साइट का यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होएगा. ये ओराई साइट एकदम मार्क करना चाहिए, उसके बाद ही देखो आप डाल सकते हो. ठीक है, तो या देखो यहाँ पर एक साइट रहता है सेलेक्टेबल मार्कर, ये मार्कर जो है ये एनेबल करता है सेल को कि ये जगह से ही सेल सेलेक्ट होता है, कि ये सेलेक्टेबल मार्कर है, वो सीक्वेंस को यहाँ से सेलेक्ट करता है और ओराई साइट में अटैच करके फिर वहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है. ओके, तो जैसा आपका बुक में दिया गया है, दैट इज PBR 322. P stands for plasmid, P stands for plasmid, B are दोनों साइंटिस्ट बोलिवर एंड रॉड्रिक्स और 322 स्ट्रेन. तो हमने एक जैसा ये एक PBR 322 लिया है, तो जैसे आप इतना साइट है, आपका बुक में क्या दिया है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन, समझ लो इधर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस यहाँ टेट्रासाइक्लिन. तो व्हाट इज बीइंग हैपन, दो है इसमें, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है. तो इफ वी आर ग्रोइंग दिस इन अ सैंपल, इफ वी आर ग्रोइंग इट इन अ प्लेट, कि जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को शो करता है, जो प्लेटिंग एम्पिसिलिन है जिसमें, तो उसमें क्या ग्रो करेगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, इट विल ग्रो इन दैट, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इट विल नॉट ग्रो इन दैट. अगर दूसरा प्लेट करेंगे टेट्रासाइक्लिन का, तो टेट्रासाइक्लिन में नहीं ग्रो करेगा लेकिन एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा. एम्पिसिलिन रखा है तो एम्पिसिलिन में नहीं ग्रो करके टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेगा, इजंट इट. तो जो प्लेटिंग जैसा रहता है उसके लिए क्या है, एंटीबायोटिक बना देता है, इजंट इट, रेजिस्टेंट जीन है उसका. तो वो जो हम लोग प्लेटिंग करते हैं उसका जस्ट ऑपोजिट बनेगा, एक ट्रांसफॉर्म होगा और एक ट्रांसफॉर्म नहीं होगा. तो उससे हम क्या है, जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. और अगर हम ऐसे नहीं डालते जीन्स, 2 जीन्स अगर नहीं यूज कर सकते हैं, तो वी कैन ऑल्सो यूज अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में क्या है, वो जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है वो ब्लू कलर का कॉलोनी दिखा देगा. तो तब भी हम रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, दैट इज ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. ये एक तरीका है. दूसरा क्या है, दैट इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. हम जबरदस्ती इसे डालते हैं टेट्रासाइक्लिन, इसको एक को जीन्स को डालते हैं ताकि एक को एकदम इनएक्टिवेट कर ले, वो जीन को इंसर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इट इज पर्पसफुली इंसर्टेड. तो क्या है, वो जीन को वो एक
जीन हम लोग डालते हैं कि वो उसको इनएक्टिव कर दे। जब वो जीन को इंसर्ट करके हम लोग उसको इनएक्टिव कर देते हैं, मतलब उसको ग्रो ही नहीं करने देते हैं, तो हमने जो डाला है भले ही वो दोनों रहा स्ट्रेन एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों में, एक को अगर हमने इनएक्टिव कर दिया तो हमें किसका कॉल नहीं मिलेगा, एक ही का कॉल नहीं मिलेगा। तो बाय दैट वे ऑल्सो वी कैन गेट अ प्योर कॉलोनी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का दो ही मेन चीज़ है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल इन्वायरमेंट, ताकि आपको एक मिले, कुछ भी मिले जो एक मिले और उसका बहुत सारा मल्टीपल कॉपीज मिले। ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दैट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ क्लोनिंग वेक्टर। तो वी हैड सीन दैट द क्लोनिंग वेक्टर इन एनिमल्स। ओके, नाउ हाउ डज इट टेक प्लेस इन प्लांट्स? क्लोनिंग वेक्टर अगर प्लांट्स में, एनिमल में हमने देखा जैसा PBR322 यूज कर लिया, एको यूज कर लिया, एको R1 यूज कर लिया, एंड प्लांट्स में यूज करते हैं TI प्लास्मिड्स। प्लांट्स में यूज करते हैं TI प्लास्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड। ट्यूमर, TI स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग, और ट्यूमर हमें पता है कि इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। तो TI प्लास्मिड जिस बैक्टीरियम से अगर निकाला गया है, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, इस बैक्टीरिया से इसे निकाला गया है। देखा जाए तो TI प्लास्मिड जो हमने निकाला है, जो वेक्टर को, वो एग्रोबैक्टीरियम से जो निकाला है, तो दैट इज हार्मफुल टू द प्लांट्स। लेकिन हम जब TI प्लास्मिड को करते हैं तो वी आर सब्जुगेटिंग इट्स हार्मफुल नेचर, उसका हार्मफुल नेचर को हटा के उसे एक वेक्टर की तरह यूज किया जाता है। तो जब ये TI प्लास्मिड जो है ये यहाँ वेक्टर है, तो जीन ऑफ आर इंटरेस्ट, प्लांट्स में भी जो जीन हमें चाहिए, जो प्लांट्स में जैसे स्वीटनेस के लिए या ग्रोथ के लिए जो चाहिए, तो वो हम TI प्लास्मिड में करके फिर आगे उसको इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द होस्ट प्लांट जीनोम, दैट इज TI प्लास्मिड। तो उसमें क्या है, इट इज नाउ हार्मलेस, वी आर मेकिंग इट हार्मलेस, अदरवाइज इट वाज प्रीवियसली इट वाज हार्मफुल ओनली, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। दूसरा क्या है, हम यूज करते हैं रेट्रोवायरसेस भी यूज करते हैं इन एनिमल्स, रेट्रोवायरसेस आर आल्सो यूज, जबकि रेट्रोवायरस देखा जाए तो इट इज आल्सो हार्मफुल, लेकिन जो हमने रेट्रोवायरस का भी जो है हार्मफुल नेचर हम हटाकर तब हम उसे यूज करते हैं एज अ वेक्टर। Okay, like if you remember in the last class also I told about ADA deficiency gene. ADA deficiency gene में हम रेट्रोवायरस यूज करते थे। रेट्रोवायरस में हम SCID से जो DNA है उसका एक DNA लेके हम रेट्रोवायरस में डालते हैं, then it is being infected, if you remember last class. Okay, so these are the various vectors which are being used in biotechnology. Okay, so again if we see the PBR322, if we are seeing cloning vector, ये एक क्लोनिंग वेक्टर है, इसके जो साइट्स है, तीन चीजें देखना है आपको एक क्लोनिंग वेक्टर में। क्या है, क्लोनिंग वेक्टर का कितना साइट्स है, यहाँ तो मल्टीपल साइट्स है, ज्यादातर एक ही साइट होना चाहिए। दूसरा, एक ओराई साइट होना चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट। थर्ड क्या है, आपका एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। उसमें क्या है, वो सेल क्या है, वो वेक्टर को सेलेक्ट करता है, एनेबल सेल कंटेनिंग वेक्टर टू बी सेलेक्टेड, सेलेक्टेबल मार्कर, एक मार्कर्स होता है, तब वो उसको सेलेक्ट करता है। तो दीज आर द फीचर्स फॉर अ क्लोनिंग वेक्टर, फॉर द क्लोनिंग टू टेक प्लेस स्मूथली। इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट क्लास, we will discuss about how we have to see about agriculture, biotechnology in agriculture and PCR. Till then, stay home, stay safe.